बेटा आज असी करांगे कॉनिक सैक्शन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ टॉपिक है इलिप्स। हाँ जी, इलिप्स जिहड़ा वै वो किस तरह बनता वै। इलिप्स बेटा की है, एक अंडाकार शेप जिस तरह होंदी है उस तरह वै। आ एक मान लो लाइन है, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ F1 ਤੇ F2। ठीक है, F1 ਤੇ F2 2 ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਿਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ F1 F2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਵਾ ਧਾਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਪੈਨਸਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਏਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਲਿਪਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਥ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, अगर इत्थे आ जाएगा तो यह सेम लाइन के उत्ते आ गया तो यह लाइन बन जाएगी। इत्थे इधर आ गया तो यह ट्रायंगल की शेप इस तरह बन जाएगी। अगर इत्थे मूव करेगा तो ट्रायंगल की शेप इस तरीके बन जाएगी। यानी कि यह पॉइंट ही सिर्फ एक जो मूव कर रहा, वो पॉइंट ने मूव करके एक शेप बनाती तो उस शेप को असीं बोलते हैं इलिप्स। ठीक है, तो यह जी लेंथ है वो हैगी है फिक्स। तो इस करके इलिप्स की जी है डेफिनेशन की होगी, एन ellipse is a set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि वो ਜਿਹੜੀ लाइन ਜਿਹੜੀ है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ट्रायंगल बनाई है ਉਹਦਾ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਵਾ फिक्स हो गया। वो डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ उन्ना ही रहेगा जिन्ना है। ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ 2a ਲਿਆ, ਅਸੀਂ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ है 2a। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕਸ ਹੈ F1 ਤੇ F2, ਪੈਰਾਬੋਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨੂੰ 2 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ellipse। The midpoint of the line segment joining the foci is called center of the ellipse। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲਿਪਸ। यानी कि ਅਸੀਂ अगर शेप बनाइए इलिप्स ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਇਲਿਪਸ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਫਿਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ F1 ਤੇ F2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ C ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਫੋਕਾਈ। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो याद रखना वो है द लाइन सैगमेंट थ्रू दी फोकाई through the
foci is called मेजर एक्सिस ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹ ਲੈਂਥ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ the end of the major axis is called a vertices the end of the major axis are called the vertices of the ellipse ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ vertices of the ellipse ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ end points ਹੋਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ vertices of the ellipse ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ the end point the line segment the line segment through the center and perpendicular to the major axis is called minor axis of the ellipse ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ minor axis ਯਾਨੀ ਕਿ a line segment through the C ਇਹ C ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ and perpendicular to the major axis ਹੈ major axis ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ major axis ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ minor axis ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਵਰਟਿਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਇਲਿਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2a ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2b ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2b ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ distance between the two foci is called a ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 2c ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ length of two foci is equal to 2c length between two foci यानी दो फोकस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਯਾਨੀ ਕਿ 2c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ c0 ਤੇ -c0 अगर इन्हों असी एक्स एक्सिस तो इन्हों वाई एक्सिस मान लीए तो माइनस एक्स हो गया तो माइनस वाई हो जाएगा यह सेंटर पॉइंट वो 0 0 तो जिनी लेंथ इधर है उन्नी लेंथ इधर होएगी तो इनू आप ले लेने पॉइंट में a0 तो यह बन जाएगा -a0 इस तरह यह बन गया 0b तो यह बन जाएगा 0 -b ठीक है यह यानी कि वर्टिसिस हो गए तो यह जोड़े वो पॉइंट्स हो गए माइनर एक्सिस के यह हो गए तुहाडे फोकस के पॉइंट ठीक है यह गल्लां असीं याद करनियां नैक्सट आपां याद करनी है इसेंट्रिसिटी की है इसेंट्रिसिटी नूं असीं लिखदे हां ई ना ई किहदे बराबर है रेशियो ऑफ सी एंड ए रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस एंड द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसिस फ्रॉम द सेंटर यानी कि सेंटर तो जिहड़ी दूरी है उन्हां दी रेशियो यानी कि फोकस की दूरी सेंटर तो इनू पसीना लिखा तो वर्टेक्स की दूरी जी सी तो सेंटर तो उन्होंने असी ए ना लिखा ठीक है यानी कि C/A जी रेशो उन्होंने असी बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। 7वां पॉइंट असी याद करना बेटा लेटस रेक्टम
ਰੈਕਟਮ। ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ 4a ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਫੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ which passes through the focus and perpendicular to the major axis ਹੈ ਜਿਹੜੀ perpendicular ਹੋਏਗੀ ਔਰ F1 ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟਸ ਰੈਕਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2b² A ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦੀ ਇਲਿਪਸ, यानी वो किस तरह आती है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इलिप्स यानी आर्टिकल कह लो, इनू तुसी जस्ट एक तरह देख लेना, समझ लेना भी ये किस तरह बनी है। मेन तुसी यही गल्लां जिहड़े पॉइंट्स उपर मैं लिखे हैं मेन वही याद करने आपां। Find the equation of the ellipse in the form of x square over a square plus y square over b square is equal to 1। यानी कि यह जी इलिप्स है ये वही तुहाडी जी हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यदी शेप है होगी, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਜਰ ਐਕਸਿਸ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ -x + x + y ਤੇ ਆਹ -y, ਇਹ O ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ 0 0, ਤੇ ਦੋ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਏ F1 ਤੇ F2। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਫਿਕਸ ਹੈ F1 ਤੇ F2, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ P ਤੋਂ F1 ਦਾ, ਤੇ P ਤੋਂ F2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ we know that PF1 plus PF2 कॉन्स्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 2a, क्योंकि मॉड है ਹੁਣ F1 ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਓ, P ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ PF1 PF2 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ XY, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ C0 ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ -C0। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ C - X ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ P ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ X - C, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ X ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲਈ P ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2a। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ F1 ਤੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ P ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ XY ਹੈ ਤੇ F1 ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ C0, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ X - C ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ Y - 0 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ F2 P ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ X - C ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, यह जोड़ा वा कि बराबर आया 2a दे, ठीक है। हुण असीं की कीता, इनू खोल लो पहले, यह बन गया x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस -2cx प्लस y स्क्वायर प्लस इत्थे माइनस माइनस खत्म हो गई तो यह प्लस बन गया, वो बन गया x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। हुण बेटा आप अंडर रूट खत्म करने लिए एक अंडर रूट की रकम असीं दूसरी साइड पर लै जाने, एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2a माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर। ਹੁਣ कर दिता आप स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड ना की हो जाएगा अंडर रूट जड़ा हो खत्म हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस c स्केयर माइनस 2cx प्लस y स्केयर इहदा करता आप होल स्केयर। तो उस तरह इधर आ जाएगा 2a माइनस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2cx प्लस y स्केयर का होल स्केयर, यह अंडर रूट के नाल है खत्म हो गया, ठीक है।
तो यह जो खत्म हो गया, यह बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। तो यह जोड़ा इस तरह इनू खोलोगे तो यह बन जाएगा थोड़ा a माइनस बी का a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा कि बराबर होंगे, वो होंगे वै a स्क्वायर, वो आ जाएगा तुहाडे को ए माइनस बी का फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये अकॉर्डिंगली यह बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस हूँ इतने अंडर रूट की रकम का स्क्वायर होएगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो नाल आ जाएगा माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 टू द 4a अंडर रूट की रकम नाल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx तो प्लस वाई स्क्वायर। हुण जिहड़ी रकम खत्म हो रही है उन्होंने खत्म कर दिए, एक्स स्क्वायर ना एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, सी स्क्वायर ना सी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ना वाई स्क्वायर। आ माइनस की रकम इधर लाओ तो वो पॉजिटिव बन जाएगी 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2cx तो प्लस 2x cx इधर जाके बन जाएगा प्लस 4cx। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ बेटा 4 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ कॉमन निकाल लाँगे तो वो की बन जाएगा, वो बन गया 4a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस cx। देखो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਜਿਹੜਾ ਵਾ कॉमन ले लिया 4a इतने तो ऑलरेडी इको रकम है तो 4a आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों रकमों चो सिर्फ 4 कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस तो ये दोनों रकम सी इन्हों के असी 4 तो ऑलरेडी हैगा वै तो यह जोड़ा दोनों चो 4 जोड़ा असी कॉमन ले लिया 4a स्क्वायर प्लस cx। ठीक है, तो ये की होया 4 दे नाल 4 जोड़ा असी कैंसल करता, 4 नाल 4 जोड़ा वो कैंसल हो गया। हाँ जी, 4 दे नाल 4 कैंसल हो गया तो हुण असी की किया बेटा साढ़े को रकम बच गई a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस cx। हुण इत्थे अंडर रूट आ रहा, ठीक है, इनू असी खत्म करने लई पहले ए जोड़ा वा उन्होंने असी इधर लै जाएंगे, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस cx ओवर आ गया a। हुण जिहड़ा a इनू खत्म करने लई की करो, इन्हां चों एक जिहड़ा कॉमन निकाल लो। ठीक है, जे नहीं निकालना तो फिर असी करिए कि स्केयरिंग कर दिए दोनों साइड्स से। पहले की करता असी स्केयरिंग बोथ साइड्स। ये जस्ट एक बार तुसी करके वेख लेना है, मेन इनू याद रखने की हले जरूरत नहीं है, इनू समझ लो बस चंगी तरह कि ये आया किस तरह। ठीक है, मेन जोड़े तुसी पॉइंट्स याद करने हैं अगे क्वेश्चन करांगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुहानू समझ लग जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर यह सारे का हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस cx यदा भी होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। यह अंडर रूट के नाल खत्म हो गया तो यह दोबारा नू a स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इनू खोलोगी बनेगा, ये बन गया a4 प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cx। 2a स्क्वायर cx इधर भी है प्लस का, इधर भी, दोनों पासे कैंसल हो गया। बाकी होर कोई रकम जी कैंसल नहीं हो रही। इन्होंने दोनों के नाल एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वाली रकम असी इकट्ठी करती, ये a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जो दोनों चो कॉमन आ गया।
तो ये नाल आ गया प्लस वाई स्केयर वाली रकम लगाती, कॉन्सटेंट जिहड़ा असी उधर लै गए। यह रकम असी ऑलरेडी इधर लैन दी हुई, इत्थे रह गया कला A4 माइनस ए स्केयर ते सी स्केयर। हाँ जी नैक्सट देखो बेटा आपां की कीता, हाँ इत्थे ए स्केयर एक्स स्केयर इत्थे ए स्केयर वाई स्केयर भी आना, ए स्केयर जिहड़ा वा वाई स्केयर नाल भी मल्टीप्लाई होना प्लस ए स्केयर वाई स्केयर। असी हुण ना क्योंकि ए स्केयर खत्म करना दोनों दे विचों, ए स्केयर असी कॉमन ले लिया। हुण तुसीं कहोगे कि इत्थे ते सी स्केयर है ते ए स्केयर कॉमन नहीं आ सकदा, तो असी जो कॉमन लैना होवे फिर की करीदा वा इत्थे आ जाएगा ए स्केयर की जगह ते आ गया 1 माइनस सी स्केयर ओवर लगा दीदा फिर, ठीक है, प्लस ए स्केयर वाई स्केयर दे विचों यानी कि इहदे चों भी ए स्केयर कॉमन आ गया, इधरों भी इस तरह ए स्केयर कॉमन ए स्केयर माइनस सी स्केयर, आ ए स्केयर दे नाल ए स्केयर जिहड़ा वो खत्म हो गया, ठीक है। हुण इत्थे एलसीएम लिया तो दोबारा ए स्केयर वो बन गया ए स्केयर माइनस सी स्केयर नाल हैगा सी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। एक गल असीं होर याद रखनी है कि इस क्वेश्चन च ए स्केयर माइनस सी स्केयर जिहड़ा है वह बी स्केयर के बराबर हुंदा, किहदे बराबर हुंदा, बी स्केयर जिहड़ा माइनर एक्सिस का बी सीगा, यह फार्मूला है कि ए स्केयर माइनस सी स्केयर की वैल्यू जिहड़ी वो बी स्केयर के बराबर हुंदी है। ए स्केयर माइनस सी स्केयर जिहड़ा बेटा वो आ गया तुहाडे को बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू भी आ गया तुहाडे को बी स्केयर, ठीक है। हुण बी स्केयर नूं असीं 1 बना ली, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी स्केयर, डिवाइड करता डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्केयर ना जो डिवाइड करांगे वो बन गया बी स्केयर ओवर ए स्केयर इंटू एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर ओवर बी स्केयर। सारा बी स्केयर ना डिवाइड करता, यह खत्म हो गया, इत्थे कैंसल हो गया, तो तुहाडे कोई इक्वेशन आ गई एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। यह किहड़ी इलिप्स हैगी है, यह हैगी है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ठीक है। यह तुहानूं दस्सिया भी ये क्वेश्चन जिहड़ा वा ये आया किस तरह। हाँ जी दूसरी इक्वेशन जिहड़ी इलिप्स की हुंदी है वो तुसीं याद करनी है, वो हुंदी है वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स यानी जिस तरह पैराबोला 4 टाइप के होंगे सी तो इलिप्स जिहड़े 2 टाइप के, एक हॉरिजॉन्टल तो एक वर्टिकल। वर्टिकल दे विच जिहड़ा मेजर एक्सिस है वो जिहड़ा वा वाई एक्सिस से शिफ्ट कर जाता, ठीक है। यानी कि अंडाकार शेप बनानी है, यह कितने आ जाता वाई एक्सिस से, वाई तो माइनस वाई हो गया, तो इस तरह के परपेंडिकुलर लाइन जी माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस से माइनस एक्स बन गई, क्योंकि हुण है जो वर्टेक्स यानी कि मेजर जी लेंथ है वो वाई एक्सिस से शिफ्ट कर गई है, तो ये पॉइंट हो जाएंगे 0A, हमेशा आप मेजर एक्सिस जो 2A ही लेना, तो माइनर जोड़ा वो 2B ही लेना हमेशा, ठीक है। तो यह बन जाएगा तुहाडे को ये वर्टेक्स हो गए 0A, तो यह बन जाएगा 0 माइनस ए। इत्थे फिक्स पॉइंट जोड़े फोकस जोड़े फिक्स पॉइंट से वो हुण मेजर एक्सिस से शिफ्ट कर गए F1 तो F2, ठीक है। यह बन जाएगा 0C यानी कि 0 माइनस C। इस तरह वर्टेक्स के पॉइंट हो जाएंगे B0, तो यह बन जाएगा माइनस B0। वो तुहानूं पॉइंट्स तो पता लग जाना कि किधर शिफ्ट होया वह जो मेजर एक्सिस है, क्योंकि पॉइंट्स तो पता लग जाना कि वाई एक्सिस के उत्ते आ गए वर्टिसिस, ठीक है। तो एज द इक्वेशन की होएगी, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज इत्थे हुण बन जाएगा एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर इज इक्वल टू 1, यानी मेजर एक्सिस जिहड़ा वा वो कितने शिफ्ट हो गया वाई दे नीचे, वाई स्केयर ओवर ए स्केयर। हमेशा याद रखना है मेजर जी मेजर एक्सिस वही लेंथ लैनी है, मेजर एक्सिस जिहड़ा वो किहदे बराबर हुंदा 2A दे, चाहे वो वाई एक्सिस वाल होवे चाहे वो एक्स एक्सिस वाल होवे, ते माइनर एक्सिस जिहड़ा है उसकी लेंथ हुंदी हमेशा 2B। C की वैल्यू असीं याद रखनी है
ए ओवर ई के बराबर है, ठीक है। ई की लेंथ जी है वो हैगी ए ओवर सी ओवर ए, सी जी है ई एसेंट्रिसिटी की लेंथ है सी ओवर ए, ई जड़ा वो सी के बराबर है। एक आप याद करना वा कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर की लेंथ जी वो सी स्केयर के बराबर होंगी। हुणी आप कढ़िया ही ए स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू लिखिया से ना बी स्केयर, ठीक है। यानी कि मेन यह भी जी चीज़ मर्जी है उधर लै गए तो वह बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर जड़ा वो सी स्केयर के बराबर होंगे। तो यह गल्लां तुसीं याद करोगे, याद रखोगे तो तुहानूं जिहड़ा वा क्लीयर हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट देखो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, फोकाई फाइंड दी coordinates of the foci, the vertices, the length of major axis, length of major axis, the minor axis, the minor axis, the eccentricity and the latest rectum of the ellipse. The eccentricity and the latest rectum of ellipse, ठीक है। ये कुछ फार्मूले याद कर लोगे तुहानूं आपे क्लीयर हो जाना। तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा लेटेस्ट रैक्टम है, लेटेस्ट रैक्टम की हुंदा ये परपेंडिकुलर होंदी लाइन विच इज़ पासिस थ्रू दी फोकस। हुण लेटेस्ट रैक्टम इहदा इधर बनेगा, ठीक है। तो यदी लेंथ जिहड़ी असीं निकालनी है कि वो कितनी आएगी, वो असीं याद कर ली। लेटेस्ट रैक्टम की जिहड़ी लेंथ है एल, उहनूं असीं लिखते हैं बी स्केयर ओवर ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्टम इज बी स्केयर ओवर ए आ जाएगी, यानी कि डबल लेंथ है तो इस करके बन जाएगी 2b स्केयर ओवर ए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रैक्टम एल ना लिखते हैं, एल इज इक्वल टू 2b स्केयर ओवर ए। हाँ जी, इलिप्स की इक्वेशन देती हुई है एक्स स्केयर ओवर 25 प्लस वाई स्केयर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। असी की करना कि पहले तो इनू स्केयर की फॉर्म च लिख लेना ना, एक्स स्केयर ओवर 5 स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर 3 स्केयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनू असी कंपेयर करांगे, कंपेयर इट विद सिंपल क्वेश्चन जिहड़े वो इस तरीके नाल आने हैं। इनू असी कंपेयर कर देना, कंपेयर इट विद एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1 ना। जो असीं कंपेयर किया इत्थे ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू आ गया 5 तो बी इज इक्वल टू आ गया 3, बी की वैल्यू आ गई 3। जिस उस तो बाद देखो जो जो निकालना तुसीं हुण निकाल सकते हो। इत्थे की है ए जिहड़ा ग्रेटर दैन बी है, ਇਹਦਾ मतलब अगर ए ग्रेटर दैन बी होवे ਇਹਦਾ मतलब इलिप्स की जिहड़ी शेप है वो जी है हॉरिजेंटल शेप, इस तरह हॉरिजेंटल शेप, ठीक है ना। ये बार बार बनाओगे तो फिर आपे क्लीयर हो जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਦੇ वर्टिसेस है, क्योंकि हुण ए जिहड़ा वा ए की लेंथ दी हुई है 5, ਇਹਦਾ मतलब वर्टिसेस जिहड़े एक्स एक्सिस ते होणगे ना, तो यह लेंथ होगी 50, यह पॉइंट हो गया 50, यह बन गया -50। तो यह जिहड़ा बी है वह वाला पॉइंट हुंदा वो बन गया 0,3, यह वाली लेंथ होगी 0 -3। हुण रह गया फोकस F1 ते F2, वो निकालने आपां।
तो आपां की किया ही कि सी जिहड़ा हुंदा वै सी जिहड़ा वै ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ AE क्योंकि ਅਸੀਂ लिखिया सी ना कि ईसेंट्रिसिटी जिहड़ी है वो है A ओवर C ओवर A यानी AE जिहड़ा वो C दे बराबर है। तो इत्थे इसेंट्रिसिटी भी निकालांगे। तो हुण निकालीए C। एक आप फार्मूला होर पढ़िया सी कि A² माइनस B² जिहड़ा वो C² दे बराबर हुंदा है। ठीक है, इत्थों साढ़े को की निकल आएगा C निकल आएगा। A² माइनस B², A के बराबर है 5 दे, हो गया 5²। B के बराबर 3 दे, 3² इज इक्वल टू C²। इसका मतलब हो गया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू C², यानी C² की वैल्यू आ गई 16, C की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4। दो वैल्यूज़ आ गई C दियाँ, एक +4 तो एक -4। एक इधर आ जाएगी, यदा पॉइंट आ गया 40। दूसरा फोकस दे पॉइंट हो गया -40। हुण जो जो निकालना है वो असीं लिखी जावांगे। ठीक है, यह आ गया तुहाडे को बेटा। हाँ जी, नैक्सट देखो फोकस की लेंथ आ गई तुहाडे को। असीं जिहड़े निकालने हैं पॉइंट कोआर्डीनेट्स ऑफ द फोकस, इत्थे लिखांगे कोआर्डीनेट्स ऑफ द फोकाई आर। कोआर्डीनेट्स ऑफ फोकाई की आ गए, वो आ गए तुहाडे को 40 ते -40। फिर आपां निकालनी है द वर्टिसेस। वर्टिसेस हो गए 50 ते -50। ठीक है, नैक्सट आपां निकालनी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू आप लिखते हैं 2A, यानी कि यह बन गया 2 × 5 इज इक्वल टू आ गया 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी आ गई 10 आ गई। फिर आप निकालनी है माइनर एक्सिस की लेंथ। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो है 2B के बराबर, यानी कि 2 × 3 वो आ गई 6। वो आंसर आ गया 6। फिर आप निकालनी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी लिखते हैं आप E ना। E के बराबर है C ओवर A दे, यानी C की वैल्यू कितनी आप कड्ढी है 4, A की वैल्यू कड्ढी आप 5, वो आ गई 4 ओवर 5। हाँ जी, वो आ गई 4 ओवर 5। हम नैक्सट आप निकालनी है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। बस फार्मूले याद करने तुसी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2B² ओवर A। ठीक है, 2B² है तुहाडे को 9, यानी 3² ओवर A है 5, ये हो गया 18/5। ये होगी तुहाडी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तुसी बस ये फार्मूले याद करोगे तो क्वेश्चन जो तुहाडे इस तरह निकल जाने हैं। नैक्सट देखो अगला है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोआर्डिनेट ऑफ द फोकाई। फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, the length of major and minor axis and the eccentricity of the ellipse, and the eccentricity of the ellipse 9x² + 4y² इज इक्वल टू 36। यह दी हुई है बेटा इलिप्स की इक्वेशन।
पहले लिखांगे आपां इक्वेशन ऑफ दी इलिप्स इज 9x² + 4y² इज इक्वल टू 36। फिर असी बेटा की करना, इनू 1 बनाना है, इनू 1 बनाना तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 36, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36 ना डिवाइड करता, 9x² ओवर 36, 4y² ओवर 36, 36 ओवर 36, 36 ना 36 कैंसिल हो गए, 9 4 ज़ा 4 9 ज़ा, यानी कि इक्वेशन बन गई तुहाडे को x² ओवर 4 प्लस y² ओवर 9 इज इक्वल टू 1, यानी कि स्केयर की शेप च लिखिए तो x² ओवर 2² प्लस y² ओवर 3² इज इक्वल टू 1। हुण जिहड़ी लेंथ है वो y के नीचे जिहड़ी ज़्यादा वै, इसदा मतलब जिहड़ा तुहाडा इलिप्स है वो बनेगा वर्टिकल शेप च, ठीक है ना। इसदा मतलब वर्टिकल शेप च अगर बनेगा तो ये जिहड़े एक्स वर्टिसिस इत्थे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यह बन जाएगा तुहाडे को 0 3, यह बन गया 0 -3, लिख लो पहले, यह आ गया 2 0, तो यह बन गया -2 0, तो इसका मतलब फोकस जिहड़े उत्थे तुहाडे आएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब फिर इनू जो असीं कंपेयर करांगे तो किहदे नाल करांगे, कंपेयर इट विद x² ओवर b², हुण x के नीचे b² आ जाएगा और y² के नीचे a² आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। हेयर b की लेंथ होगी 2, a की लेंथ होगी 3, ठीक है। इसका मतलब जो आप निकालना निकल जाएंगे ना, हुण फोकाई निकालने हैं, तो इसका मतलब एक ही आ जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू c², यानी कि 9 - 4 इज इक्वल टू c², 9 - 4 हो गया 5, c की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5, इसका मतलब हो गया फोकाई आर की बन गए। फिर हुण यह याद रखना असीं y एक्सिस से पॉइंट लै रहे, फोकस जिहड़े y एक्सिस से शिफ्ट हो चुके हैं, इसका मतलब x की वैल्यू की हो जाएगी 0, y की वैल्यू √5, दूसरा हो जाएगा 0 माइनस √5, यह तुहाडे बन गए फोकाई के पॉइंट। हुण उस तो बाद वर्टिसिस आर वो बन जाएंगे 0, क्योंकि शिफ्ट हो चुका कितने y एक्सिस, 0 3 तो 0 -3। फिर उस तरह लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ते माइनर एक्सिस निकालनी आपां, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो आ जाएगी तुहाडे को, लेंथ वही रहेगी ना 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है तुहाडे को बेटा 3, ए की वैल्यू कितनी है 3, ये बन गया 6, दिस इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट आ जाओ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2b, दैट इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल टू 4। फिर आपां निकालना बेटा इसेंट्रिसिटी ई, इसेंट्रिसिटी ई नू लिखते हैं c ओवर a ना, c की वैल्यू कितनी है √5, ई की वैल्यू है 3, ठीक है। हुण आपां लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकाल लेने, चाहे उन्हें नहीं कही तो भी निकाल लेने। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला याद करो 2b² ओवर a, यानी कि बन गया 2 × b² की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया 8 ओवर 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन जिहड़े आ इस तरीके नाल तुसीं कर लेने।